Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Idris and I am here for lecture number 8. Our course is spectral graph theory. In the last lecture, uh, we discussed orthogonal matrix and its properties. And in today's lecture, we will study uh, more graphs related to path graphs, star graph, circle graph, and wheel graph. We will try to find the agency matrices of some path graphs, star graph, circle graph, and wheel graphs. Now, there are few words about the connectivity of a graph. If a graph is connected, the largest eigenvalue has multiplicity 1. So this we have already done. You can see in K3 graph, the largest eigenvalue is 2 and its multiplicity is 1. Means it occurs in the roots of the characteristic polynomial only once. Now, what's about the converse of this statement? Is it true or false? Is the converse of the theorem is true or not? Can you do it? Can you do it with by using example? I have given you two examples. Using these two examples, you can show whether the converse of the theorem is true or not. So this is you can see is an assignment for you. ये ग्राफ अगर कनेक्टेड है तो उसकी आइगन वैल्यू 1 है, उसका जो आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है। तो अगर मल्टीप्लिसिटी 1 हो तो क्या वो ग्राफ जो है वो कनेक्टेड होगा? ठीक है, तो दिस यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल. तो so in these two examples you have to calculate the spectrum of these two graphs. Then you can see whether the result is true or false. Another two results that we have already studied is about the cycle graph. You have studied it. Uh, Now you can prove this result by using an example of cycle graph. And see whether the eigenvalues are 2 cos of 2 pi n I. So in a cycle graph, which is also known as two regular connected graph, in which the degree of each vertex is 2. In every cycle graph, the degree of each vertex is 2. Now you have to find whether its eigenvalues are 2 cos 2 pi over n I value is 0 to n minus 1. यानी जो आइगन वैल्यूज साइकिल ग्राफ की आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगी क्या? ठीक है, तो आप कोई साइकिल ग्राफ आपने लेना है, C3 ले लें, C4 ले लें आप, और उसकी आइगन वैल्यूज निकालें और वो देखें क्या आती हैं और फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके देखें कि वही आंसर आते हैं कि नहीं. इस तरह से आपने इसको वेरीफाई करना है और इसमें फिर आपने देखना है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितनी हैं. ये भी आगे फॉर्मूला दिया, इसको भी वेरीफाई करना है आपने. It has m equal to n over 2 plus 1 distinct eigenvalues. N over 2 plus 1, this is a function which denotes the largest integer
स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स, यानी जो भी सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू है वो ले लेनी है आपने, ठीक है, लेकिन उस नंबर से छोटी होनी चाहिए। यानी कि अगर 7.1 है तो आपने 7 ले लेना है उसको, लार्जेस्ट इंटीजर 7 ही है, 7.1 से लेस, लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है, यानी जो भी नंबर होगा उससे छोटा जो इंटीजर है ना वो ले लेना है, ठीक है, यानी कि 7.1 है या 7.2 है तो आप उसको 7 लेंगे, 7.2 से लेस इंटीजर 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, लेकिन सबसे जो बड़ा है वो 7 है, तो वो आपने लेना है, ठीक है। इस तरह अगर 7.9 भी आ जाता है तो फिर भी आपने 7 ही लेना है, 7.9 को 10 नहीं लेना है, ठीक है, ये मीनिंग है इस फंक्शन का। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है वो स्टार ग्राफ के लिए आपने ये प्रूव करना है, स्टार ग्राफ का भी एजेंसी मैट्रिक्स निकालना है और उसके चेक करना है कि आइगन वैल्यूज उसकी ये आती हैं। द स्टार Sn is a tree having a vertex, central vertex, which is adjacent to all remaining vertices, all of them being of degree 1. स्टार ग्राफ में ये होता है कि एक vertex होता है that is known as central vertex and this vertex is attached to all other vertices. तो वो स्टार की तरह एक बन जाएगा और जो बाकी जो वर्टिसेस होंगे, एक तो सेंट्रल वर्टेक्स है ना, जो बाकी वर्टिसेस हैं उन सब की जो डिग्री है वो 1 1 होगी, यानी अगर Sn है, Sn is a star graph, then one vertex has degree n-1 and the remaining all vertices has degree 1. तो इसमें ये सेटिस्फाई आपने करना है फॉर ईच स्टार ग्राफ n greater than equal to 3 has m equal to 3 distinct eigenvalues. तो इसमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो सिर्फ 3 होंगी, m जो है ना वो डिस्टिंक्ट के लिए ये नंबर शो किया हुआ है, ठीक है, यानी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितनी आएंगी, जैसे कि पहले हमने वो साइकिल ग्राफ में किया है m इक्वल टू n/2 + 1, तो इतनी इसमें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आएंगी, यानी अगर साइकिल ग्राफ में देखें ये फॉर्मूला गिवन है n/2, तो n फॉर एग्जांपल n जो है ना 4 है तो 4/2 तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, इट मीन्स इसमें 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आएंगी। इस तरह n की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज भी बढ़ती जाएंगी, इसमें आइगन वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। आप देखें ना कॉस में एंगल आ रहा है और एंगल में अगर आप n चेंज करते जाएंगे तो एंगल उतना ही स्मॉलर होता जाएगा और फिर वो ज़्यादा उसके सर्कल कंप्लीट होने में ज़्यादा एंगल चाहिए होंगे, इसलिए जो है वो इसमें एन इंक्रीज होगा तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज भी इसकी बढ़ जाएंगी साइकिल में, लेकिन स्टार ग्राफ में जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं वो 3 ही रहेंगी, ठीक है। एक जो आइगन दो जो आइगन वैल्यूज हैं वो ±n-1 आए, इनको सिंपल आइगन वैल्यूज भी कहते हैं, जो ±1 जो रिपीट नहीं हो रही वैल्यू उसको सिंपल आइगन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, बाद बुक्स में ये भी लिखा हुआ है। एंड द रिमेनिंग आइगन वैल्यूज आर -1 इज इक्वल टू -1, यानी दो वैल्यूज होंगी ±n-1 और बाकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो -1 के इक्वल होंगी, ठीक है। 2 से लेकर n-1 तक ये वैल्यूज होंगी, इट मीन्स के जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है वो आप कह सकते हैं कि वो n-1 अंडर रूट है
और जो nth वैल्यू होगी वो माइनस n माइनस वन अंडर रूट होगी। यानी दो आइगन वैल्यू ये लिखी हुई हैं, बाकी कितनी रह जाएंगी वैल्यूज़, 2 से लेकर n माइनस वन तक जो वैल्यूज़ हैं वो -1 के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपने वेरीफाई करना है। स्टार ग्राफ कोई n की वैल्यू 3 4 ले लें तो उसको वेरीफाई करें। 4 ले लेंगे तो ज़्यादा वो बेहतर होगा, क्योंकि बेहतर रिजल्ट आ जाएगा, 4 वैल्यूज़ उसमें आ जाएंगी और उसमें फिर ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप देखें जो -1 है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है। जो -1 है उसकी मल्टीप्लिसिटी n-2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना ये, क्योंकि दो वैल्यूज तो वो आ गई हैं, बाकी n-2 वैल्यूज रह गई हैं। ठीक है, दो वैल्यूज हैं वो तो प्लस माइनस n-1 अंडर रूट है, और जो रिमेनिंग आइगन वैल्यूज हैं वो -1 के इक्वल होंगी। ईच वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 एंड इस मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज n-2। तो ये आपने एग्जाम्पल्स लेके वेरीफाई करना है। ठीक है, दिस इज अगेन एन असाइनमेंट फॉर यू। इसी तरह बाईपार्टाइट ग्राफ है, इसमें भी आप एग्जाम्पल्स इसकी कर चुके हैं और ये रिजल्ट मेरा ख्याल है शायद आप शो भी कर चुके होंगे। अ कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ के n1 n2 consists of n1 plus n2 vertices। ज़ाहिर है अगर आप mn आपने अगर पढ़ा है तो उसमें वर्टिसेस कितने होंगे, m प्लस n ही होते हैं। ठीक है, यानी दो सेट्स जो बनते हैं उसमें consists of n1 plus n2 vertices divided into two sets of the cardinalities n1 and n2। यानी दो सेट्स हैं, हर एक की जो कार्डिनैलिटी है वो n1 और n2 होगी, with the edges connecting each vertex from one set all the vertices in the other set। यानी ये बाईपार्टल ग्राफ कैसे बनता है, n1 के जो वर्टिसेस हैं, n1 वर्टिसेस जो हैं और जो n2 वर्टिसेस हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन लेकिन जो एक सेट के जो वर्टिसेस है वो कनेक्टेड नहीं होते। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ एजेस इज n1 n2। आप कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ ये होता है कि ये एक सेट का जो वर्टेक्स है वो दूसरे सेट के सारे वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो टोटल वर्टिसेस इस तरह से फिर आ जाएंगे n1 मल्टीप्लाइड बाई n2, क्योंकि हर वर्टेक्स जो है ना आपको n2 वर्टेक्स देगा, दूसरा वर्टेक्स वो भी n2 एजेस देगा, तीसरा वर्टेक्स भी n2 एजेस देगा। n1 की बात कर रहे हैं ना, जो n1 वर्टिसेस हैं उसमें जो पहला वर्टेक्स है वो n2 टाइम्स होगा, और जो दूसरा वर्टेक्स है उसके भी n2 एजेस आ जाएंगे, क्योंकि वो सबके साथ कनेक्टेड है। तीसरा वर्टेक्स जो है वो भी n2 एजेस उसके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी n1 मल्टीप्लाइड बाई n2। तो इसको आप वेरीफाई आप कर सकते हैं, कोई भी ग्राफ अगर आप बनाएं बाईपार्टाइट, कंप्लीट बाईपार्टाइट, तो उसके जैसे K23 आप बना के चेक कर सकते हैं। इफ़ यू ड्रा K23 ग्राफ, तो टू वाला जो सेट है उसमें हर वर्टेक्स के साथ तीन तीन एजेस आएंगे, तो टोटल एजेस 6 हो जाएंगे। आप देखें, इट मीन्स you can find the number of edges by multiplying the number of elements in the two sets. Now star graph is also a bipartite graph, Sn equal to k1 n minus 1, because all other vertices has degree 1 and there is one vertex which has degree n minus 1 and the other has degree 1। यानी एक सेट जो है ना उसमें एक ही वर्टेक्स है, वो सेंट्रल वर्टेक्स होता है स्टार ग्राफ में, और बाकी सब जो है ना बाकी n माइनस वन वर्टिसेस हैं वो उनके साथ कनेक्टेड है, लेकिन जो बाकी n माइनस वन वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है।
More generally, bipartite graphs consists of two sets of vertices with the edges connecting a vertex from one set to a vertex in the other set. The spectrum of K n1 n2 is n1 plus n2 must be greater than equal to 3. Also consists of m equal to 3 distinct eigenvalues. तो इसमें भी 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आएंगी, यानी दो वैल्यूज ऐसी होंगी जो जो रिपीट नहीं हो रही होंगी और बाकी वैल्यू सारी रिपीट हो रही होंगी. तो इसमें you can prove it by using an example that the two eigenvalues are plus minus under root n1 n2, n1 multiplied by n2. These are the two eigenvalues which has multiplicity 1, and 0 is the eigenvalue which has multiplicity n1 plus n2 minus 2. So this you can prove by using an example. Next, there is another assignment for you. You can easily verify this one. Prove that the agency matrix A, the ijth entry in AK, represents the number of walks of length k between the vertices I and j. Then the sum of all aij entries, the sum of the aij entry in a plus a square plus a cube plus n minus 1 equals to the number of walks from vi to vj that are of length n minus 1 or less. तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं. एक मैट्रिक्स एजेंसी मैट्रिक्स किसी का ले लें, K3 का लेने तो वो कर लें आप, और उसका ए स्क्र ए क्यूब निकाल लें. तीन तीन जो है ना वो मैट्रिसेस निकाल लें, और उसकी आपने देखना है कि आई जेथ एंट्री क्या आ रही है. तो जो भी उसकी आई जेथ एंट्री है जो ऐड करके आएगा ना, जो ए स्क्र एंड ए क्यूब, जो ऐड ए स्क्र एंड ए क्यूब, तो एक मैट्रिक्स आएगा. देन लुक इस आई जेथ एंट्री. तो जो आई जेथ एंट्री है which tells us which is equal to the number of walks. आई जेथ एंट्री जो भी होगी वो तो नंबर ऑफ walks ही बताएगी ना. ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ walks from vi to vj that are of length n minus 1 or less. तो वो जो आएगी उसकी जो लेंथ होगी vi to vj, जो walks बनेंगी उसकी लेंथ n minus 1 होगी या लेस होगी. ठीक है, यानी कि अगर आपने जो है वो 3 तक लिया है, ठीक है, ए स्क्र एंड ए क्यूब 3 तक लिया है, तो आपके पास फिर ऐड करके जो एंट्री आएगी डेट हैव लेंथ n माइनस 1 और लेस, और इसकी लेंथ अगर है n की वैल्यू 3 है तो 2 हो जाएगी उसकी भी. ठीक है, यानी वॉक की जो लेंथ है वो 2 होगी या फिर उससे लेस होगी. ठीक है, सो दिस यू कैन वेरीफाई बाय यूजिंग एन एग्जांपल ऑफ K3. Another note for this result is note that the maximum diameter of a connected graph of order n is n minus 1. तो कनेक्टेड ग्राफ कोई भी हो उसका जो ऑर्डर है वो n माइनस 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता. किसी भी वर्टेक्स का जो डिग्री है वो n माइनस 1 से ज़्यादा नहीं होगी. Thus summation AK has positive integer entries for all aij if the graph is connected. तो कनेक्टेड ग्राफ है तो फिर ये इसकी एंट्री जो है ना ये पॉजिटिव आएंगी. Therefore we can find a walk of length n minus 1 or less between any two vertices. अब जो ऑर्डर है वो n माइनस 1 है तो उसका फिर
जो वॉक है वो लेंथ n-1 से लेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि समेशन जो है ना वो n-1 तक ही ऐड हो रहा है ना, ठीक है? यानी a एंट्री है, फिर a स्क्वायर है, a क्यूब है, हर एक की एंट्रीज़ ऐड होती जा रही हैं, ठीक है? तो जो तो वॉक की लेंथ जो है वो फिर n-1 से लेस ही रहेगी। The diameter of a graph G is the minimum value of R such that summation AK has positive entries for all age। तो जब तक इसकी पॉजिटिव एंट्रीज आ रही हैं AK की, तो R की जो वैल्यू है that is known as diameter। So this you can also verify from the example of K3, ठीक है? या किसी और एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हैं, ठीक है? यस द स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं, ठीक है? जिसमें जैसी मैट्रिक्स की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।